اور انڈیا کی جی پالیسی تبدیل ہونی شروع ہو گئی. انڈیا نے بنگلہ دیش پہ ویزاز بند کر دیے ہیں. بنگلہ دیش تڑپ رہا ہے, انڈیا کے قدموں میں بیٹھ گیا ویزاز کے لیے. ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ بھی بہتر تعلقات چاہتے ہیں, جو دا ہندو رپورٹ کر رہا ہے انڈیا سے. بنگلہ دیش وانٹس ہارمونیس ٹائز ود انڈیا. نتیجن بھارت کے ویزا کے لیے جم کر مارا ماری ہو رہی ہے. بنگلہ دیشی ناگرک کسی طرح بھارت میں آ جائے, اس کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. بنگلہ دیش نے جو کیا آج اس کو جو ہے اس کی سزا مل رہی ہے. ٹھیک, وہاں طالبان ہمارے گلے پڑ گئے, ادھر اب بلوچ ہمارے گلے پڑ گئے. ایک طرف ملک کو دہشت گردی, خراب معیشت, مہنگائی جیسے مسائل کا سامنا ہے, تو دوسری طرف عالمی سطح پر بھی پاکستان کے لیے خبریں اچھی نہیں. اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ان بھکاریوں کی جنہوں نے پہلے سعودی عرب میں جا کر ناک کٹوائی تھی. اب وہ رخ کر رہے ہیں ایران کا, رخ کر رہے ہیں عراق کا. انٹرنیشنل کمیونٹی بڑے سیریس انداز سے دیکھتی ہے کہ جس کو وہ پیسے ہینڈ اوور کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کیا ان کی عوام کے اندر کوئی ویلیو, کوئی ورتھ, کوئی کریڈیبلٹی ہے. عراقی حکام کی جانب سے پاکستانی حکومت کو ایک خط لکھا گیا ہے. اس میں پاکستانی بھکاریوں کے اس مسئلے میں ایف آئی اے سٹاف کے ملوث ہونے پر ناراضی کا اظہار کیا گیا ہے. بنگلہ دیش نے ایک دفعہ پھر سے پکارا ہے انڈیا کو مدد کے لیے. اب جو انڈین پرائم منسٹر مودی کی ملاقات ہوئی ہے, ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن سے, تو وہ اگر آپ انڈیا کے ساتھ پنگا لیں گے, آپ کی انڈیا کے آپ جا رہے ہیں, آپ کی 80% جو علاج کی سہولت ہے وہ انڈیا کے پاس ہے. اب آپ نے انڈیا سے بگاڑ لی, یا تو اپنے لوگوں کو مار دو آپ, یا انڈیا کے پاؤں پکڑ لو آپ. اگر یہی کچھ ہونا تھا نا بنگلہ دیش کے ساتھ, تو بنگلہ دیش کو چاہیے تھا کہ ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہ کرتا, کیونکہ ہندوستان کے ساتھ جس نے بھی تعلقات خراب کیے ہیں نا, اس کا نقصان ہی ہوا ہے. کیونکہ ہندوستان ایک بہت ڈیولپمنٹ والا, بہت ترقی یافتہ ملک ہے, اس کی سب سے بڑا دیش ہے آبادی کے لحاظ سے, ٹھیک ہے جی, اور ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے, ہر چیز ہی ہے ان کی ہندوستان کے پاس, ہر چیز سے قدرت نے نوازا ہے ہندوستان کو, ٹھیک ہے جی. تو ہر ملک کو ہندوستان کی ضرورت ہوتی ہے, اور جس نے بھی ہندوستان کے ساتھ بگاڑی ہے, چاہے مالدیپ ہو گیا, چاہے قطر ہو گیا, چاہے چائنا ہو گیا, جو بھی دیش ہے نا, جس نے بھی ہندوستان کے ساتھ پنگا لیا یا ہندوستان کے خلاف بات کی یا ہندوستان کے ساتھ انہیں تعلقات خراب کیے, اس کا خود کا نقصان ہوا ہے, ہندوستان کا کچھ نہیں کیا. اب بنگلہ دیش یہ منتیں کر رہے ہیں جی کہ ہمیں ویزا دو, ویزا دو. کیسے ویزا دے, جبکہ بنگلہ دیش کے عوام نے ہندوستان کے بارے میں کیا کیا لفظ بولے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ سارا کچھ دیکھنا سوچنا پڑتا ہے. آخر آپ کا ایک ملک ہے, دوسرے ملک کو ساتھ لے کے آپ کو چلنا پڑتا ہے, مگر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ملک میں احتجاج کرو, ٹھیک ہے جی, اپنی حکومت کو گراؤ اور آپ دوسرے ممالک کے خلاف باتیں کرو. ایسا نہیں, آپ کو اتنا تو رکھنا چاہیے کہ آپ کے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ خراب نہ ہو. تو اس کا اب نقصان جو بنگلہ دیش کے عوام کو ہوگا وہ ہم پوری دیکھیں گے. ویڈیو کے بعد ہم کریں گے بات. چلو آؤ ویڈیو دیکھیں. انڈیا نے بنگلہ دیش پہ ویزاز بند کر دیے ہیں. ایمبیسی کے اندر جو ہے انڈین سٹاف موجود نہیں ہے. بنگلہ دیش تڑپ رہا ہے, انڈیا کے قدموں میں بیٹھ گیا ویزاز کے لیے. اتنی بڑی چینج آ رہی ہے اس خطے کے اندر. بنگلہ دیش نے پہلے اینٹی انڈین نعرے لگائے, اور آج وہ انڈیا کے قدموں میں بیٹھ کے ویزا کے لیے ترس رہا ہے. بہادری اور بیوقوفی میں زمین آسمان کا فرق تھا. بیوقوفی کر لی بنگلہ دیش والوں نے, ٹھیک ہے, 15 دن میں ان کی ہوا وہ ہو گئی ان کی. دیکھیں, انہوں نے احتجاج کیا تھا, ان کو کرنا چاہیے تھا کہ اپنے ملک کی حد تک رکھیں. وہ کسی کی بھی ایمبیسی, کسی ملک بھی ایمبیسی میں جا کے ان کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. پہلے تو انہوں نے بہت بیوقوفی دکھائی, انڈیا والوں سے انہوں نے پنگا لے لیا, ٹھیک ہے. وہ اپنے ملک میں جیسے احتجاج کر رہے تھے, وہ جو بھی تھا ان کا وہ رائٹ تھا, وہ کر رہے. انڈیا کو انوالو نہیں کرنا چاہیے, انڈیا کو نہیں, کسی ملک کو بھی انوالو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ میں جسٹ پرسن انڈیا کی نہیں بات کر رہا, کسی ملک کی بھی ایمبیسی کے ساتھ آپ کو تعلق نہیں بگاڑنے چاہیے, کیونکہ یہ بالکل ایک غریب سا ملک ہے. کوئی اتنا تگڑا ملک نہیں ہے کہ کسی بھی ملک کو کہے گا ٹھیک ہے. ان کے دیکھیں, ان کا سب سے پرابلم کیا, ان کا صحت کا نظام ہی نہیں ہے بنگلہ دیش. تو وہ اگر آپ انڈیا کے ساتھ پنگا لیں گے, آپ کی انڈیا کے آپ جا رہے ہیں, آپ کی 80% جو علاج کی سہولت ہے وہ انڈیا کے پاس ہے. اب آپ نے انڈیا سے بگاڑ لی, یا تو اپنے لوگوں کو مار دو آپ, یا انڈیا کے پاؤں پکڑ لو آپ, ٹھیک ہے. کیونکہ پاکستان آپ آ نہیں سکتے, آئیں گے تو انڈیا کے تھرو آئیں گے. جب انڈیا نے نہیں آپ کو آنے دیا, پاکستان میں کیسے. میانمار کے ساتھ آپ کی آلریڈی نہیں بنتی, پہلے سے پاکستان ہندوستان والا سسٹم ہے آپ کا. تو میرا خیال ہے ان کو معافی مانگ لینی چاہیے سیدھا اسٹریٹ اوے. اور ان کے اداروں نے یہ کام کروا لیا, اور اب وہ بھی سر پکڑ رہے ہوں گے بھائی ہم نے کروا کیا لیا. ان کی جو بھی کھانے پینے کی چیزیں وہ بھی انڈیا سے آتی ہیں, سارا کاروبار انڈیا سے ہے. اوور آل ان کا یہ جو ان کے بارود اسلحہ وغیرہ آرمی کا آتا ہے وہ بھی وہیں سے آتا ہے. ان کی بائکس, ان کی گاڑی, ان کے پاس خود کا ہے کیا, انڈیا دیتا ہے, میڈیکل ویزا بھی, میڈیکل ویزا اور بہت ساری سہولت.
اور دیکھیں یہی इंडिया दे रहा है इनको बेवकूफ। मतलब जीने के लिए सारी चीजें तो इंडिया से मिल रही ना इनको। हाँ। पहले इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा इंडिया के साथ मिलके, अब इंडिया को छोड़ रहे हैं, क्या म्यांमार के साथ मिलना, वो तो खुद रुल रहा है भाई। आप किसका सहारा ले रहे हैं? और हिंदुओं पे जिस तरह इन्होंने अटैक किए, फिर मोदी साहब ने कहा कि हिंदुओं पे अटैक करना बंद करें, मतलब कि इतना एंटी इंडिया हो गए थे कि खुद के बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे थे। देखिए वो इस तरह कर लिया ना उन्होंने, अब वो पछताएंगे। वो एक जज्बे में आगे उन्होंने कर लिया, गलत कदम उठा लिया, अब वो पछताएंगे। देखिए इंसान इंसान है, हम ये नहीं कहते कि हिंदू या मुसलमान किसी की भी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो चाहे इंडिया का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे बांग्लादेश का। इंसानियत सबसे पहले, मुल्क उसके बाद में बनते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये अब इन्होंने बेवकूफ़ी की है, अब इसकी सजा ये भुगतेंगे कि अब ये रहेंगे ज़मीन पर, और इनको 1 साल के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि भी कुछ भी कर ले, इनको वीज़े नहीं मिलने वाले, मुंह नहीं लगाएगा कभी भी नहीं। 1-1.5 साल तो आप भूल जाए ना कि बिल्कुल भी इंडिया इनको लिफ्ट ही नहीं कराएगा, और ये ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे। जो इनकी इज्जत बनी थी, जो इन्होंने पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट फेंका था कि भाई हम एक खुद मुख्तार है, वो सारा इन्होंने ना पानी में डाल दिया। इन्होंने बिल्कुल बेकार सी ये हरकत की है इन्होंने, किसी भी एम्बेसडरी के आगे जाके एहतजाज करने की, वहाँ पाकिस्तान के इन्होंने नारे लगा के पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व किया। ये भी सबसे बड़ी ज़्यादती इन लोगों ने की कि पाकिस्तान को शो कर रहे हैं कि भाई हमारे प्रोटेक्ट में पाकिस्तान, यानी कि बड़ा अच्छा इन्होंने काम कर लिया था। हम ये नहीं चाहते कि उनके मुल्क में क्या हो रहा था, ये उनका राइट है वो जो उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने सारा जो एक अपने सर के ऊपर ताज स्टूडेंट ने सजाया था ना, वो पकड़ के इन्होंने बेड़ा गर्क अपना कर लिया। पूरी दुनिया मिसाल दे रही थी, भाई बांग्लादेश को देखें, बंगालियों को देखें, हक के लिए खड़े हो गए, आवाज़ उठाई इन्होंने। लेकिन पता नहीं चला, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। नहीं, कुल्हाड़ा नहीं मारा, ये पाँव को लेके गए कुल्हाड़े के पास के भाई मेरे आओ लगने के लिए मेरे पास। सर इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है, मार्केट उसकी बहुत बड़ी है। जैसे आपने कहा गरीब मुल्कों को फंड देता, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश तो इंडिया के भरोसे चल रहा था। मोदी साहब शेख हसीना के साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, उनको फंड दे देते थे, फ्री वीज़ा देते थे, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। हज़ारों बांग्लादेशी डेली बेसिस पर इंडिया जाते थे। आज अगर इंडिया वही चीज़ इनको लौटा रहा है तो अब इनकी चीखें निकल गई हैं। देखें यही चीज़ है ना, इन्होंने सबसे पहले ये इन्होंने काम किया एम्बेसडरी के पास, ये गलत हुआ। अब इनका ये स्टेबल नहीं होना, इनकी इकॉनमी तो पहले क्रैश हुई पड़ी है, तबाही की तरफ आई पड़ी है, और इनका बेड़ा कर गिरा था, अब ये हरकतों पे हो जाना। इससे अभी इनको ये करना चाहिए, अपने सफ़ीर को भेजें, माफ़ी मांगे, भी इनको ख़त्म करें। शेख हसीना को कहते हैं इंडिया की पपेट है। देखें वो जिस तरह एक रोड मैप उनका हुआ है जाने का, वो इसी तरह हुआ नई दिल्ली गए। क्योंकि देखें मुझे नहीं समझ आई कि बांग्लादेशी वाले ये बात क्यों करें कि शेख हसीना उधर नहीं गई, और शेख हसीना वहीं जाना था और उसने कहाँ जाना था। देखिए उसके लिए सेफ प्लेस है, उसके लिए नहीं, ओवरऑल बंगालियों के लिए वही तो प्लेस थी एक जहाँ वो जाते थे। किसी भी मुल्क में जाना हो वो पहले वहाँ जाते। देखिए यूरोप, कहीं भी यूरोप उन्होंने ट्रैवल करना होता है ना, तो उनके पास अपनी तो इतनी नहीं है एयरपोर्ट वगैरह, ना उनके पास एयरलाइन इस तरह की, वो इंडिया जाते हैं, नई दिल्ली से जाके वो जहाँ भी जाते हैं। अब तो उन्होंने पूरे इंडिया से नहीं रब्ता ख़त्म किया, पूरी दुनिया से उनका रब्ता ख़त्म हो गया। अब क्योंकि यूरोप जाना है, उन्होंने किसी भी कंट्री में जाना है, तो वो अपने मुल्क से तो नहीं जा सकते ना। उनकी इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया के काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर वहाँ लगाना चाह रहे थे, आ रहे। अब जो मेन अब इनका जो बांग्लादेश का फोकस होगा ना, वो ये देख रहे होंगे कहीं इंडस्ट्री वाले अपने शेयर ना उठा लें। अगर इंडिया ने शेयर उठा लिए तो ये मैं कह रहा हूँ म्यांमार क्या, ये अफगानिस्तान का जो आज से 15 साल पहले हाल था, उससे बुरा हाल हो जाना इनका। लो जी वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है जी, हैरान कर दिया वीडियो ने कि आप देख लें कि जी कि बांग्लादेश अब किस तरफ जा रहा है, किस तरह के हालात हो गए हैं। उनकी जो आवाम है वो अब हर चीज़ को तरसेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें थी ना, वो हिंदुस्तान की तरफ से आती थी। हिंदुस्तान ने तो सबसे पहले वीज़ा बैन कर दिया उनका अपने मुल्क में दाखिला बैन कर दिया है बांग्लादेशियों का, ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने जितनी भी चीज़ें हिंदुस्तान वो देता था बांग्लादेश को, वो सारी चीज़ें हिंदुस्तान ने रोक ली हैं, ठीक है। इस तरह उनकी जो मार्केट है, उनकी मार्केट में वो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है जी। बांग्लादेश को चाहिए था कि अगर वो हसीना वाजिद की हुकूमत को गिराना चाहते हैं तो इस हिसाब से गिराते कि ताकि आपके ममालिक के दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात ख़राब ना होते, ख़ास कर हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के तल्लुकात बहुत ही अच्छे दोस्ताना तल्लुकात थे। हिंदुस्तान ने हर लिहाज पे, हर मुहाज पे बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। जब हसीना वाजिद जो साबका प्राइम मिनिस्टर है, वो जब चाइना गई थी, चाइना ने हसीना वाजिद को घास नहीं डाली। वो मोदी सरकार का ही बड़ापन है। मोदी सरकार ने उसको हौसला दिया, उसको कहा कि आप टेंशन नहीं लो, हम आपके साथ खड़े हैं, जो कुछ आपको चाहिए हम देंगे।
मगर बांग्लादेश की अवाम ने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि हमारे साथ क्या होगा। उन्होंने जज्बात में आके फ़ैसले कर दिए और फैसले अब उनके ही मुंह पे पड़ रहे हैं, उल्टा पड़ रहे हैं। उनको ही नुकसान हो रहा है बांग्लादेशियों को। किसी भी मुल्क के तल्लुकात बांग्लादेश के साथ अच्छे नहीं हैं। कोई भी, अब देख लें हसीना वाजिद को किसी भी मुल्क ने पनाह नहीं दी। हसीना वाजिद का मुस्तकबिल क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। ठीक है जी, अब वो दर बदर भटक रही हैं। ये हिंदुस्तान का बड़ा पन्ना फिर भी उसने अपने मुल्क में रखा। हसीना वाजिद को अपने मुल्क में जगह दी। उसने ये भी कह दिया कि आप अगला कोई अपना बंदोबस्त करें, जब तक नहीं होता आप हमारे मुल्क में रह सकती हैं। ये देखें, हिंदुस्तान ने हर तरह सपोर्ट किया है। पाकिस्तानी मछेरे वो जो समंदरी डाकुओं ने पकड़ लिए थे, ठीक है, ये हिंदुस्तान ही है जिसने ये नहीं सोचा कि ये दुश्मन देश के लोग हैं। नहीं, हिंदुस्तान की आर्मी ने उनको भी आज़ाद करवाया समुद्री लुटेरों से। हिंदुस्तान तो हर लिहाज से मदद करता है दूसरे ममालिक की, हर जगह पे मदद करता है। अब यूक्रेन हिंदुस्तान मोदी सरकार गए हैं, वहाँ जाके उनको मेडिसन दी हैं, हॉस्पिटल दिए हैं। ये देख लें, हालांकि हिंदुस्तान के और रूस के कितने तल्लुकात हैं। हिंदुस्तान और रूस के कितने तल्लुकात अच्छे हैं। हिंदुस्तान के रूस के साथ तल्लुकात होने के बावजूद मोदी सरकार ने यूक्रेन का दौरा किया। मोदी सरकार ने यूक्रेन को हर चीज़ दी, मगर देख लें रूस ने नहीं कहा कि आप क्यों चीज़ें दे रहे हो, बल्कि रूस ने जो हमला करना था, अटैक करना था, वो बंद कर दिया। अब हिंदुस्तान ने अमेरिका जाना है। अमेरिका भी देख ले कि अमेरिका में सारा कुछ हो रहा था। अमेरिका को तशवीश का इजहार था। अमेरिका कह रहा था कि ये मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मोदी सरकार की जो पॉलिसियाँ वो चाहते हैं कि हर मुल्क को साथ ले कर चलें। अब मोदी सरकार अमेरिका जा रहे हैं, इसी वजह से जा रहे हैं ना कि वो अमेरिका के साथ भी उनके तल्लुकात ख़राब ना हों। तकरीबन 73,000 के करीब 73,000 के करीब वो उनसे राइफल वगैरह, हथियार, वेपन वगैरह ख़रीदेगा मोदी सरकार। तो इतनी बड़ी मकदार में तो वो किस तरह अमेरिका उनके साथ तल्लुकात ख़राब करेगा। ऐसे ही बांग्लादेश को चाहिए था कि जो भी सूरत हाल होती आप इंडिया के साथ तल्लुकात ख़राब ना करते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का ज़्यादातर दारोमदार इंडिया के साथ था। ठीक है, अब पाकिस्तान के जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ट्रेड चल रही थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी, तो पाकिस्तान के हालात भी बड़े अच्छे थे। पाकिस्तान में महंगाई नहीं थी, चीज़ें आम थी, सस्ती थी, हर चीज़ आम मिल रही थी। जब पाकिस्तान के हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात ख़राब हुए, देख लें कि महंगाई भी या पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है पाकिस्तान की। हमें चाहिए कि बांग्लादेश को चाहिए, चाइना को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए, सऊदी अरबिया को, सब को चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात रखें। क्योंकि देख लें जी, जो जिसका वक़्त होता है ना, उसके साथ चलना पड़ता है। हिंदुस्तान का टाइम है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का टाइम है, ये वजह नहीं है। अब बांग्लादेशी जो मिन्नतें कर रहे हैं कि आप हमें अपने मुल्क हिंदुस्तान आने के लिए इजाज़त दी जाए। मैंने देखी कई वीडियो, वो तकरीबन वो कहते हैं जी कि वो समंदर पार करके, झीलें पार करके जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर आर्मी ने रोक दिया कि आप नहीं आ सकते हो, ऐसे ये अनलीगल होगा काम। ठीक है जी, मगर देख लें फिर भी बांग्लादेश कह रहे कि नहीं हमने हिंदुस्तान जाना है। उन्होंने एक उम्मीद लगा रखी है हिंदुस्तान से, उम्मीद लगा रखी है हिंदुस्तान से, मगर हिंदुस्तान के साथ जिस तरह का सलूक किया गया है, जिस तरह हिंदुस्तान के बारे में बातें की गई हैं जज्बात में आके, ठीक है जी, अब वो नुकसान हिंदुस्तान का तो कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तान के साथ सारी दुनिया खड़ी है। ये कि बांग्लादेश के साथ तल्लुकात ना भी हुए तो हिंदुस्तान का कुछ नहीं जाएगा। वो जितना भी नुकसान होगा वो सारा बांग्लादेश को होगा। अब वीज़ा बैन हो गया है, आपकी खाने पीने की चीज़ें उन्होंने बैन कर दी गई हैं, आपके हर चीज़ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी वो बैन कर दी गई है। तो क्या करेगा बांग्लादेश क्या करेगा? यही बात है कि पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमसाया ममालिक हैं। एक तो ये फ़ायदा होगा कि दहशतगर्दी ख़त्म होगी इस खित्ते से, मिल के सारे ममालिक दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे। ऊपर से अवाम को रोज़गार भी मिलेगा, महंगाई भी कंट्रोल में होगी, बड़ी चीज़ें सस्ती मिलेंगी, बड़ी चीज़ें सस्ती मिलेंगी इंडिया से। अगर हम ट्रेड करते हैं, तजारत करते हैं, इंडिया के साथ तल्लुकात हम अच्छे करते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इधर भी नुकसान होगा पाकिस्तान का, उधर भी हिंदुस्तान में नुकसान होगा। आम गरीब आवाम जो बेकसूर आवाम होगी वो दोनों तरफ से मारी जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास एटमी कुव्वत है, दोनों ममालिक, और दोनों के पास एक ताकतवर फ़ौज है, पाकिस्तान के पास भी और हिंदुस्तान के पास भी। ठीक है,
तो बेहतर यही है कि सफारती तल्लुकात दोनों के अच्छे होने चाहिए, दोनों ममालिक के तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ठीक है जी। बाकी जो मामला है वो तो चलते ही रहने हैं, मामला चलते रहे, मगर तल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के। पूरी दुनिया हिंदुस्तानी लोगों की तारीफ़ कर रही है उनके काम की वजह से, और हमें क्या कहा जा रहा है कि ये मांगने आ रहे हैं दूसरे ममालिक में। हमारे जितने भी लोग हैं आप ये देखिएगा कि मैंने एक वीडियो देखी थी कि जो इंग्लैंड है, यूके में लोग गए हैं भीख मांगने, हालांकि पाकिस्तानी 50 से 60 लाख रुपए का वीज़ा है यूके का, 50 से 60 रुपये लगा के 50-60 लाख रुपए लगा के वो यूके में भीख मांगने जा रहे हैं लोग। मैंने ऐसी सोशल मीडिया पर वीडियो देखी है। ऐसे लोगों की वजह से पाकिस्तान का वक़ार दुनिया की नज़रों में नीचे गिर रहा है, दुनिया की नज़रों में गिर रहा है, ठीक है जी। कभी सऊदी अरेबिया में यही पता चलता है जी कि लोग वीडियो आ रही हैं सोशल मीडिया पे, और हिंदुस्तानी लोगों को देखो कि वो तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि यार हिंदुस्तानी लोगों ने ये कारनामे सर अंजाम दे दिए हैं, हिंदुस्तानी लोग ये काम कर रहे हैं जी, हिंदुस्तानी लोग यहाँ पे तरक्की कर रहे हैं जी, हिंदुस्तानी लोग यहाँ पे। आप इतना ही देख लें कि बरतानिया का नज़ात वज़ीर आज़म जो है वो हिंदुस्तानी है, ठीक है जी। तरक्की तो फिर की है ना उन्होंने, इसीलिए पूरी दुनिया को ज़रूरत है हिंदुस्तान की। वर्ल्ड बैंक का CEO जो है वो सरदार जी हैं, इसलिए पूरी दुनिया में तरक्की की है हिंदुस्तान ने। पूरी दुनिया को ज़रूरत है हिंदुस्तान की। ऐसे ही बांग्लादेश को ज़रूरत है हिंदुस्तान की। बांग्लादेश चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हों। अब तो सिर्फ मोदी सरकार पर डिपेंड करता है, मोदी सरकार पर डिपेंड करता है कि वो हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात, बांग्लादेश के साथ तल्लुकात अच्छे चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर मोदी सरकार ने हाँ करती तो उनके हालात बदल जाएंगे, अगर मोदी सरकार ने ना कर दी तो बांग्लादेश के पल्ले ही कुछ नहीं रहना, बांग्लादेश के पल्ले ही कुछ नहीं रहना। फिर किसी भी मुल्क ने बांग्लादेश की सपोर्ट नहीं करनी। अगर हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया ना तो किसी भी मुल्क ने बांग्लादेश की सपोर्ट नहीं करनी, क्योंकि पूरी दुनिया हिंदुस्तान का कहना मानती है। जो हिंदुस्तान कहता है वही कुछ होता है, ठीक है जी। अब बांग्लादेश के हालात देख लो, पाकिस्तान के हालात देख लो, और हिंदुस्तान के हालात देख लो। पूरी दुनिया में आलमी सतह पे हम देखते हैं ना कि वैल्यू किस चीज़ की है, वैल्यू हिंदुस्तान की है। ये एक रियलिटी है, हकीकत है, ठीक है जी। हमारे कुछ लोगों ने, हमारे जो भी जो दूसरे ममालिक में लोग जाते हैं, कुछ उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान को बदनाम कर दिया पूरी दुनिया में, ठीक है जी। कुछ अंदरूनी मामला हमें ले डूबे हैं। अब ईरान कह रहा है जी कि मैं जो आलमी अदालत में नोटिस जारी कर दिया ईरान ने पाकिस्तान को, ठीक है जी, कि मुझे जी इतना पैसा। तो देखें हमारी सिचुएशन अंदरूनी बहुत ख़राब है, तो हम ईरान को कहाँ से पैसा देंगे, कहाँ से पैसा देंगे। और हिंदुस्तान देख लो कि ईरान हिंदुस्तान को एयरपोर्ट दे रहा है, बंदरगाहें दे रहा है हिंदुस्तान को, क्या बात है यार। तो ऐसे ही पूरी दुनिया को ज़रूरत है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की ज़रूरत है हिंदुस्तान की पूरी दुनिया को, क्योंकि एक बहुत बड़ी दुनिया की मार्केट है हिंदुस्तान, बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी है और इंपोर्ट करने वाला भी हिंदुस्तान है, ठीक है जी। दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करने वाला भी हिंदुस्तान है, दूसरे ममालिक में इन्वेस्ट करने वाला भी हिंदुस्तान है। सबसे बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बिगाड़ने नहीं चाहिए, हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अब बांग्लादेश माफिया मांग रहा है, तो मोदी सरकार को चाहिए कि नेबर देश होते हुए, हमसाया मुल्क समझते हुए बांग्लादेश को माफ़ कर दें और अच्छे तल्लुकात बढ़ाएं और सपोर्ट करें बांग्लादेश को। मेरी तो वैसे दुआ है कि इस खित्ते में जितने भी ममालिक हैं ना, सबके साथ तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, एक दूसरे के साथ तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होनी चाहिए, एक मिल के तरक्की करनी चाहिए सबको, मेरी ये ख्वाहिश है। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।